Yes, I Hi friends, good evening everyone. Hey folks, introducing Dr. Ravi Shankar Polisetty, a pioneer in integrative Ayurveda and Allopathy. He is a pioneer in the field of integrative medicine. He is a cardiovascular surgeon turned naturopath who has developed a unique and effective approach in treating many diseases that combines the best of Ayurveda and Allopathy. So, according to Ayurveda, Dr. Polisetty explains that the body is a complex system. So his approach is based on understanding that the body is a complex system. So his goal is to restore the health by balancing vata, pitta and kapha in all the 7 different tissues and 42 organs that brings homeostasis in the body. So Dr. Polisetti is one of the few doctors in the world who is also a data scientist. He uses his knowledge of data science to analyze the effectiveness of different treatments and to develop new and innovative methods. So, taking innovation to the next level, Dr. Polisetty has invented Docture-Poly, a groundbreaking wearable device designed to sense and detect your unique biological signals. So, powered by advanced AI and ML protocols. So, this remarkable invention provides personalized recommendations tailored specifically to your needs. So, experience the future of healthcare with Dr. Ravi Shankar Polisetty and discover the immense potential of polyscientific Ayurveda and Docture-Poly in optimizing your health and well-being, friends. So, now comes the Hindi version. परिचय देते हैं डॉक्टर रविशंकर पोलिसेट्टी। एक समन्वयात्मक आयुर्वेदिक और एलोपैथी डॉक्टर है। डॉक्टर पोलिसेट्टी समन्वयात्मक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रथमवेंद्री हैं। वे एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन से आयुर्वेदिक वैद्य बन गए हैं, जिन्होंने रोग का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक और एलोपैथी के सर्वश्रेष्ठ तत्वों अद्वितीय। डॉक्टर पोलिसेट्टी विश्व में कुछ ही डॉक्टरों में से एक हैं जो डेटा वैज्ञानिक भी हैं। वे डेटा विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके विभिन्न उपचारों की प्रभावकारिता का विश्लेषण करते हैं और नए और अभिनव तरीकों का विकास करते हैं। इनोवेशन को एक स्तर आगे ले जाते हुए डॉक्टर पोलिसेट्टी ने डॉक्टर पॉली का आविष्कार किया है, जो आपके अद्वितीय जैविक संकेतों को महसूस और पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके आधुनिक आय और मिलीलीटर प्रोटोकॉल्स द्वारा संचालित यह अद्वितीय आविष्कार आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत सिफारिश प्रदान करता है। डॉक्टर रविशंकर पोलिसेट्टी के साथ चिकित्सा के भविष्य का अनुभव करें और पॉली साइंटिफिक आयुर्वेदा और डॉक्टर पॉली की अत्याधुनिक क्षमता का खोज करें, जो आपके स्वास्थ्य और कल्याण को अधिकतम स्तर तक उन्नत करेगा। Hi, good evening, friends. Thank you very much to introduce me. नमस्कार दोस्तों, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पहली बार हिंदी और इंग्लिश में कर रहा हूँ ये रिले लाइव, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए मैं एंड में टाइम छोड़ूंगा ज़रूर। Today is the first time that we are doing this live in English and Hindi, and towards the end of this presentation, which will last for about say 30 minutes, I will take your questions both in Hindi and English. All right, friends. So let me start with a presentation. Um, so I am presenting the polyscientific Ayurveda, friends. This is a very, very advanced form of integrative medicine, and this essentially comes from a translational research of our own Ayurveda. You would all wonder why Ayurveda, because this is the science that has sustained our civilization for the past 40,000 years. And today, this is the only country which has this cultural continuity after 40,000 years. Several civilizations appeared and disappeared. Now we have none of those civilizations culturally living. It's the only civilization living, and I attribute this to the power of Ayurveda. So मैं ये कहना चाह रहा था कि पॉली साइंटिफिक आयुर्वेद का प्रस्तुत करते हुए
मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा एडवांस्ड और सबसे आ, उच्च फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ऐसा एक शास्त्र है जो हमें ऋषि मुनियों के जरिए हम पाए हैं, और इसके जरिए आ, पिछले 40,000 साल से ये भारतवर्ष में जो कल्चरल कंटिन्यूटी जो हो रहा है, मतलब कल्चर जो अभी भी बचा हुआ है भारत में, ये आयुर्वेद हम सबको, हमारे पूर्वजों को सशक्त रखने की वजह से हुआ है। और इसीलिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये आयुर्वेद। लेकिन इस आयुर्वेद को हमने क्या किया है, को एक ट्रांसलेशनल रिसर्च के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आज का एक फोरमोस्ट साइंस है एलोपैथी, उसमें कोई और हमें आ, कोई और रास्ता नहीं है कि हमें आयुर्वेद को एलोपैथी के लैंग्वेज में प्रस्तुत करना ही है। तो इसलिए हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का एक एलोपैथी के रिसर्च मेथड्स के जरिए उसको रिसर्च करते हुए एक नया साइंस का, जिसको हम कहते हैं पॉली साइंटिफिक आयुर्वेद, उसको प्रस्तुत करते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव, because allopathy is the popular and foremost science today, we translated the concepts of Ayurveda into the language of allopathy by applying the research methodologies to create models of Ayurveda in the language of modern science, applying the modern research methods, and have arrived at polyscientific Ayurveda. And this science is used to improve clinical outcomes, and this science has really helped in the last 21 years. This has been serving people to essentially treat from several diseases, including allergies, asthmas, autoimmune disorders, diabetes, ischemic heart disease, several other diseases which were incurable in allopathy, or end stage diseases that were like left over. The patients were left on, your uh, the left on their own medical management, were addressed, and people have improved. So yeah, please don't construe this as a Ayurveda versus allopathy kind of a debate or a presentation. It is Ayurveda plus allopathy. What it would give to the humanity is what we are going to present. So हम ये कहना चाह रहे थे कि ये नया साइंस जो है पॉली साइंटिफिक आयुर्वेद को हमने पिछले 21 वर्षों से एंड स्टेज डिसीज में, मतलब ऐसे रोगियों में हमने इसको दिया है जिनका और कोई रास्ता नहीं था। जो एलोपैथी में सब कुछ जब आजमा के उनका और कोई रास्ता नहीं है, उसको हम ऐसे पेशेंट्स को हम एलर्जी हो, एस्थमा हो, एंड स्टेज मतलब, और हार्ट डिसीज हो, डायबिटीज हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, ऐसे कई बहुत सारे कैंसर्स है एंड स्टेज के जिनका और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे पेशेंट्स को हमने इस माध्यम के जरिए उनका क्लिनिकल आउटकम इम्प्रूव किया है। और ये बहुत बेहतरीन साइंस है। लेकिन मैं ये पहले ही बता देता हूँ, ये केवियट में देना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, मतलब आयुर्वेद का एलोपैथी के मुकाबले के साथ हम जो ऐसे कोई चर्चा हम लाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी के जरिए दोनों को मिला के अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा आउटकम होगा लोगों में, ये हम कहना चाह रहे हैं। और ये क्यों जरूरत है? अगर आप आज देखेंगे तो क्या हो रहा है, अगर हाँ मतलब आयुर्वेद एक बहुत एडवांस्ड साइंस है। जो एलोपैथी समझेगा वो आयुर्वेद समझ पाएगा, मतलब एलोपैथी से बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस है। इसमें फंडामेंटल रिसर्च का तरीका आजमाना होगा, इसमें आयुर्वेद का जानना होगा, और इसमें ट्रांसलेशनल रिसर्च का आजमाना होगा, डेटा साइंस का, मैथमेटिक्स का, पाइथन का, मतलब ये बहुत बड़ा एडवांस साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। और अगर आप एक बार सोचेंगे तो पुराने ज़माने में जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर नाड़ी परीक्षा के जरिए, अष्टविधा परीक्षा के जरिए पेशेंट को आजमाता है और पेशेंट का डायग्नोसिस करता है। उसके बाद डॉक्टर खुद
पेशेंट को हुआ क्या है वो समझा के फिर जाके वो जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके और उसमें से दवा बना के वो पेशेंट को देता है। इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद डॉक्टर उस जमाने के एलोपैथी मत या पॉपुलर साइंस जानने के जरिए जानने के वजह से इस साइंस को पेशेंट को अप्लाई करके पेशेंट को समझा के थोड़ा मतलब सोसाइटी को समझा के फिर पेशेंट को उस कन्विंस करके अपने पास वैद्य के पास पेशेंट जब आता है तो अष्टविध परीक्षा के जरिए डॉक्टर मतलब लैब टेक्नीशियन भी होते हैं जो मल परीक्षा मूत्र परीक्षा करने के बाद पेशेंट का डिसीज डायग्नोसिस करने के बाद अपना उस जमाने के डेटा साइंस अप्लाई करके और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके मतलब फाइटोकेमिस्ट्री के जानने के वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानने की वजह से एक जड़ी बूटियों से एक दवा बना के हर पेशेंट को पर्सनलाइज करता था। ये है आयुर्वेद। तो दिस इज इसीलिए हम आयुर्वेद को एक नया रूप से हम प्रस्तुत करते हैं। तो हम आयुर्वेद में एलोपैथी भी देखते हैं, फंडामेंटल रिसर्च देखते हैं, ट्रांसलेशनल रिसर्च भी इसके साथ ही शामिल हुआ है, ऐसा हम देखते हैं। और आयुर्वेद का डॉक्टर बहुत बड़ा एडवांस डेटा साइंटिस्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बहुत जल्द ही समझ में आएगा। आगे स्लाइड्स में मैं जो दिखाऊंगा आप चौकन्ना हो जाएंगे कि इतना डेटा ऑलरेडी हमें उसको डेटा को एक एनालिटिकल पद्धति के जरिए हमें प्रस्तुत किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, मतलब एंशिएंट साइंटिस्ट ने। और उसके साथ उनको एडवांस मैथ जैसे कात्यायन सूत्र, सुलभ सूत्र, ये सब जानने की वजह से एक एल्गोरिथमिक तौर से आयुर्वेद को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, आयुर्वेद का उस जमाने का डॉक्टर वो आयुर्वेद का डॉक्टर था, एलोपैथिक डॉक्टर था, फंडामेंटल रिसर्च था, ट्रांसलेशनल रिसर्च भी था, डेटा साइंटिस्ट, अप्लाइड मैथमेटिशियन था और एक कोडिंग फॉर्म उस जमाने के कोडिंग फॉर्म जानता था और लैब टेक्नीशियन भी था और जड़ी बूटियों का जानकारी होने की वजह से वो फाइटोकेमिस्ट था। और उसके साथ साथ जड़ी बूटियों के जरिए एक दवा बनाने की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानकर बायो इन्फॉर्मेटिक प्रोग्रामर बन के ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि संस्कृत जानने के वजह से, इन ग्रंथों में क्या लिखा है उसको जानने की वजह से वो सही तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकता था। तो what I'm trying to say is, friends, those days when a patient went to Ayurvedic doctor, because he knew the popular science of those times, he could explain the patient his problems in the language of in the language which patient would understand. And applying advanced data science concepts, I'm not just saying that they were simply saying that there were advanced data science concepts, because look at the Sulabha Sutras, the Katyayana Sutras, the advanced Vedic math. These were the algorithms that the Ayurvedic doctor already knew. He applied them to come up with algorithmic form of patient diagnosis, disease diagnosis, and then giving a syntax based treatment protocols which involve diet, personalized exercise regimen, personalized yogasana regimen, personalized pranayama regimen. And because he was a lab technician as well. Why am I saying he was a lab technician? Because in Ayurveda, in the Ashtavida Pariksha, there was something called as the Mala Pariksha, Mutra Pariksha. So he used to do the stool test, urine test, Twak Pariksha, the skin test, the tongue examination, skin examination. Several tests were done by the doctor himself. So, and hence I'm saying that the Ayurvedic ancient doctor was also a lab technician, and after properly diagnosing the patient, he used to give appropriate medicines by formulating them on the go. He had knowledge of the herbs, and with the herbs, he used to prepare personalized medicine. So, the point I'm trying to say is that he was a phytochemist and manufacturer. He knew the manufacturing process as well, and hence he was a bioinformatic programmer. And all this was possible because he was a Sanskrit scholar, and the ancient books were documented in Sanskrit because it's a very, very advanced syntax-based science which has Nava Vyakaranas, the 9 Vyakaranas, which in the Indram, the Aindram, Sandram, Shakalam, Shakadayanam, Kasakrishnam, Kaumarakam, Pandiniyam, Saraswatam. These
grammar principles, had a specific syntax, and if every language has its own grammar principles, but Sanskrit has 9 sets of grammar principles, which makes the language very advanced in communication, because each matra or each syllable would have 9 meanings. If a word has 2 syllables, then the word would have 8 to the power of 9 to the power of 2, 81 meanings, friends. And अगर संस्कृत में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि एक ही भाषा है जिसमें नव व्याकरण का इस्तेमाल किया जाता है. इंद्रम, आइंद्रम, शाकलम, शाकादायनम, काशकृत्स्नम, कौमारकम, पाणिनियम, सारस्वतम और कौमारकम है. ये नव व्याकरण के जरिए संस्कृत में सारा जो भी ज्ञान है प्रस्तुत किया जाता था. और ये भाषा के जरिए एक मात्रा के जरिए नौ मीनिंग्स का प्रस्तुत किया जाता था. और अगर एक शब्द में 2 मात्राएं होती तो 9 टू द पावर ऑफ 2, मतलब 81 मीनिंग्स, मतलब इतना मीनिंगफुल होता था हर मात्रा. तो नव व्याकरण का जानकारी की वजह से ये डॉक्टर्स इतना एडवांस साइंस पेश करते थे. तो हम आयुर्वेद को क्यों देखें, आयुर्वेद के और क्यों देखें, मैं ये 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ. हेल्थ का डेफिनेशन अगर आप देखा जाए तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. मतलब स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना ही केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति. ये कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इट मीन्स इज दैट today we are only in the field of allopathic medicine, or the modern medicine is actually characterizing only the physical characteristics. If you go to a doctor, he would run a battery of tests, and before running a battery of tests, he would ask several questions, and these questions are all symptom based, and based on the symptoms, he would ask several questions, and the questions based on which he would run battery of tests, and your blood is analyzed. So what we are investigation is only the physical health. The mental health is also assessed, but we really don't know how to actually understand mental health. Social well-being, friends, it's a very gray matter. अगर शारीरिक हिंदी में कह रहा हूँ कि ये शारीरिक हेल्थ का या स्वास्थ्य का एक डॉक्टर कैसा टेस्ट करता है. आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स के जरिए कुछ टेस्ट लिखते हैं. आप लैब में जाते हैं, जाके वो बैटरी ऑफ टेस्ट करने के बाद ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड में सीरम टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट करते हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे टेस्टों के बारे में ये आज का ये का लाइव नहीं है, लेकिन इतना कहना जरूरी है कि हम फिजिकल बॉडी को टेस्ट कर रहे हैं और मेंटल बॉडी को टेस्ट करके वो मेंटल हेल्थ क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंटल हेल्थ क्या है और क्या नहीं है हम पूरी तरीके से बता नहीं पाते. और सोशल वेलबींग, आप देखिए सोशल में, सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा, मतलब वेलबींग तो कहा गया है, लेकिन सोशल वेलबींग है क्या, सोशली हेल्दी है मनुष्य नहीं है, ये बताने के लिए कोई साधन नहीं है आज के मेडिसिन में. तो इसीलिए हम आयुर्वेद के ओर देख रहे हैं. तो यही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर आप डायबिटीज ले लीजिए फॉर एग्जांपल, फिजिकल टेस्ट के माध्यम से आप जाएंगे अगर डॉक्टर के पास. एक आज बहुत बड़ी महामारी है दुनिया में, डायबिटीज. एक तो हमें बताना है कि आधुनिक चिकित्सा के व्यवस्था के जरिए हम सिर्फ 15% डिसीजेस ट्रीट कर रहे हैं. एक्यूट स्टेज में 15% डिसीजेस का ट्रीटमेंट हो रहा है, और 45% डिसीजेस को हम उनका इटियोलॉजी, मतलब क्यों हो रहा है ये भी जानते नहीं है. 45% डिसीजेस को हम एक्यूट से क्रॉनिक में बदल रहे हैं. हम डॉक्टर ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन अभी जितना आधुनिक चिकित्सा का व्यवस्था बढ़ा है उसके जरिए इतना ही हो पा रहा है. और अगर सबसे बड़ी महामारी है जो डायबिटीज के बारे में अगर जानकारी देना है, मैं जरा इसको अभी 1 मिनट में आऊँगा. See, today the problem with the current medicine or the modern medicine is that
we are treating only 15% of diseases, 15% of acute stage diseases. 45% of acute diseases are converted into chronicity, and about 40% are diseases that we don't even know why they even occur, like autoimmune disorders, several cancers. We don't know why they occur. We have certain postulates, a hypothesis, but we don't know really how they occur. So that's why we're not able to cure them. So if you look at the state of the current diagnosis, or the state of the world's largest problem today, the diabetes is like, there are going to be 700 million patients very soon. That's what the World Health Organization says about diabetes. Uh, the problem is that you go to a doctor if you suspect diabetes. Where if you run the battery of tests, what your doctor would see is that he would look at the blood glucose values. There is a parameter which is called as the HbA1c. HbA1c is the average of the blood glucose for 3 months, and there's a certain test that is run. It is called as a glycated hemoglobin test, and based on which you are essentially you're treated. Your doctor treats you. So the problem is, of course, the fasting level should be above a certain limit. It should not go above 100. The post lunch should not go beyond 140, is what the protocol says, or the guidelines say. The problem really is different organizations come up with different numbers. The American Association of Clinical Endocrinologists says that your HbA1c should be below 5.5. The American Diabetic Association says it should be 6.5. American Geriatric Association says it should be between 7 and 7.5. American College of Physicians says it should be between 7 and 8. And your Veterans Affairs Diabetic Association says it could be around 8.5, or some patients have done well with 9.5. See, friends, the problem is, who how do you treat diabetes? If you say increased blood glucose levels is diabetes, so what is the definition of increased blood glucose levels? Should it be around 5.5, or should be around 9.5? Different individuals do well with different numbers, and hence different associations come up with different numbers again. And I'm not saying that the associations have some agenda. It's not at all agenda. Don't go by the WhatsApp university's wisdom, friends. WhatsApp universities is screwed up. I would say that all the associations, if you look at their data, they have data. They have credible data based on which they have statistical analysis done, and based on which they're presenting you these numbers. So the point is, how come different associations have different numbers and different data based on the statistics or data that they have generated? So आज अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो सबसे बड़ी महामारी है डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, उसके लिए टेस्ट करने के लिए फास्टिंग का 100 से कम होना चाहिए, और 140 से, कुछ लोग 160 मानते हैं, उससे कम होना चाहिए पोस्ट लंच, और विद इन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 180 से जाना नहीं चाहिए. ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं. और ट्रीटमेंट करने के विधाएं, मतलब एक पद्धति है जिसके लिए HbA1c नामक एक पैरामीटर को हम आजमाते हैं, कंटिन्यूसली टेस्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है. अमेरिकन क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि आपका HbA1c 5.5 से कम होना चाहिए. अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कह रहा है 6.5 से कम, और अमेरिकन जेरियाट्रिक एसोसिएशन कहता है इन्होंने 7 बटे मतलब 7.5 होना चाहिए, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ये कहता है कि 7 और 8 के बीच में होना चाहिए, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ये भी कहता है कि 6.5 से कम होना ही नहीं चाहिए, खासकर जब आपके पेशेंट में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ दोनों इकट्ठे हो. तो क्यों? क्योंकि उनके ट्रायल के हिसाब से 31% एक जगह कहा जाता है, 42% एक जगह कहा जाता है कि 42% लोगों में जिनके अंदर हार्ट की बीमारी और डायबिटीज साथ हो, उनके अंदर कम से कम 7 होना चाहिए, और 6.5 से कम अगर करेंगे तो 100 में से, ऐसे 100 पेशेंट में से 30 मर गए हैं. मतलब उनका डेटा ये कहता है कि, और व्हाट्सएप के जरिए ये कहा जा रहा है कि ये सारे एसोसिएशंस रिग्ड है और लॉबी है. नहीं, मैं ये मानता ही नहीं हूँ दोस्तों. ये बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये इन सब एसोसिएशंस के पास डेटा है.
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास 60,000 पेशेंट का डेटा, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के पास 1 लाख पेशेंट का डेटा, जीरियाट्रिक एसोसिएशन के पास 70,000 पेशेंट का डेटा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के पास 7 लाख पेशेंट का डेटा है। तो मतलब देखिए, पेशेंट का डेटा तो गलत नहीं कह सकता है ना। तो ये सारे अपने पेशेंट का डेटा को लेकर एनालिसिस करने के बाद ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों में आपको 7 से 8 अच्छा है और 6.5 से कम होना ही नहीं चाहिए, और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के खिलाफ है ये। तो ये क्यों खिलाफ है, ये इसका एक मसला, हम आज अगर इसका मसला खत्म नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अत्याचार ऑलरेडी हो रहा है। तो इसीलिए इस मसले का हल के लिए हम आयुर्वेद के शरण में आ गए थे। आज नहीं, पिछले 30 साल पहले हम आए थे। और आयुर्वेद में ये अभी हमने एलोपैथी के जरिए हेल्थ क्या है ये हमने देखा है, और एक बार देख लेते हैं आयुर्वेद के जरिए हेल्थ क्या है। तो यहाँ पे ये संहिता में सूत्र सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में 18वें श्लोक का पहले चैप्टर में ही पहले ही सर्ग में महर्षि सुश्रुते कहते हैं, समदोषाः समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनाः स्वास्थ्य इत्यभिधीते कहते हैं। कि इसका मतलब ये है कि जब तीन दोषों का मतलब वात पित्त और कफ तीनों का समतुल्य होता है, मतलब तीनों का प्रमाण सही होता है, तब ऑटोमेटिकली आपका प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन, तीनों का आपका मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली आता है, मतलब स्वास्थ्य इति अभिधीयते। और ये दोस्तों, स्वास्थ्य का बहुत गहरा मीनिंग है। मतलब ऋषि मुनियों आरोग्य लिख सकते थे। आरोग्य का मतलब है पाणिनि के जरिए रोग अभासः इति आरोग्य है, लेकिन रोग मतलब रोग का आभास मतलब एब्सेंस है आरोग्य, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों इस्तेमाल किए हैं स्वास्थ्य का, प्रयोग किए हैं स्वास्थ्य का एक शब्द। स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थानम शीर्यते इति ही स्वास्थ्य है। मतलब स्वास्थ्य का मतलब है कि स्वस्थानम मतलब स्वस्थान में जाना है आपको, वही स्वास्थ्य है। और स्वा का मतलब है आत्म, मतलब ये समदोष के वजह से जब ये तीनों दोषों का मतलब वात पित्त और तीनों कफ का, तीनों का समतुल्य होता है बॉडी के अंदर, सारे सर्व 42 ऑर्गन्स में और सप्त धातु में 7 टिश्यूज में, तो ऑटोमेटिकली आपका मनस, इंद्रिय और शरीर के स्वास्थ्य उत्पन्न होता है, और आप सीधा मतलब स्वास्थ्य के मतलब स्वास्थ्य के और आदमी बढ़ता है और स्वास्थ्य को पाया जाता है। तो दिस इज व्हाट इज Ayurveda saying. Now, what is Ayurveda saying is, based on the shloka that is just mentioned here, when the three doshas of Vata and Pitta and Kapha are in the state of equal proportion in all of the 7 tissues and 42 organs, the body automatically sets itself into a self-healing mode and balances. It leads to physical, mental, and spiritual well-being. And interestingly, the word arogya, which means health, is not used here. The word swasthya is used. Friends, the arogya, when you derive it from the word from the Navavyakarana, Sanskrit, it means roga abhasaha iti hi arogya. There's a syntax, there's a definition there. Absence of disease is arogya. It means arogya. But swasthya means swasthanam shiryate iti hi swasthya. Swasthya means that which brings you to the original atmic state is swasthya. So when does it occur? It occurs when the three doshas are in equal proportion in all of the 7 tissues and 42 organs, which leads to prasanna atma, present atma, which means you're talking about spiritual well-being, prasanna indriya, all the sense organs and the actions, the jnanendriya and the karmendriyas attain a pleasant predisposition, and prasanna manaha, the mental predisposition, are also very pleasant. So this is what is swasthya according to Ayurveda. The definition looks really promising. Now, what does uh, so what does the
What does this ancient science talk further? It says that when you essentially, have all of these three things in equal proportion, then the body is automatically itself into self-healing mode and cures all diseases. This is amazing, isn't it? Because uh, there is we all know the infinite power of the body's healing powers, but we really don't know how to set it up, how to in set them in the right perspective. So in Ayurveda, the beauty is that the body automatically sets itself, and the key here is to detect your three imbalances through different test modes of tests. There in Ayurveda there are Ashtavidha Pariksha. It's called as the eight methods of diagnosis, and one of the important methods is the Nadi Pariksha, through which you essentially apply differential pressure on the radial artery, and then by understanding the pulse characteristics you determine the proportions of vata pitta kapha in 7 tissues and 42 organs. आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा के माध्यम से ये वात पित्त कफ का इन तीनों का डायग्नोसिस होता है। ये इसमें से मूल परीक्षा का मतलब मूल परीक्षा है नाड़ी परीक्षा, जिसके जरिए वात पित्त कफ का प्रमाण सारे 42 ऑर्गन में पता किया जा सकता है। ये बहुत एडवांस तरीका है दोस्तों। ये ऐसा सिंपल परीक्षा नहीं है जो मैं लाइव में कह सकता हूँ, लेकिन आप हमारे पास आएंगे तो आप देखेंगे हम कैसे डिफरेंशियल प्रेशर मतलब अलग अलग प्रेशर अप्लाई करके 7 लेवल में आपका रेडियल आर्टरी मतलब नस जो है उसको 7 प्रेशर में 7 डिफरेंट लेवल में प्रेशर अप्लाई करके तीनों उंगलियों से हम इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को प्रेस करते हुए 3 पॉइंट और 7 लेवल में हम उसको प्रेस करते हुए 21 पॉइंट राइट हैंड में, 21 प्रेशर पॉइंट लेफ्ट हैंड में पता करते हैं। और इन प्रेशर पॉइंट्स में वात और पित्त और कफ को ऐसा पता करते हैं मतलब ये पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे वात का होता है सर्प गति, मतलब ये ऑलरेडी वात को कैसे जांचना चाहिए, कैसे उसको डायग्नोसिस डिटरमिन करना चाहिए, उसके बारे में भी ऑलरेडी आयुर्वेद में लिखा गया है। वात को अगर जहाँ जहाँ सर्प गति होता है वहाँ पे वात होता है, और पित्त जहाँ पे मंडूक गति जो होता है वहाँ पे पित्त, और हंस गति जहाँ पे होता है उसको कफ कहा जाता है। और कई कई बार ऐसा होता है मतलब इन तीनों का प्रमाण जानने के लिए सर्प गति का प्रमाण कितना है, मंडूक गति का कितना है और हंस गति का कितना है, ये पता करने की वजह से हमें आ, हमें आयुर्वेद में मतलब हर ऑर्गन में वात पित्त कफ का प्रमाण पता चलता है। जैसे ये पता चलता है उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पर्सनलाइज डाइट, पर्सनलाइज एक्सरसाइज और पर्सनलाइज योगासन, पर्सनलाइज प्राणायाम और पर्सनलाइज डाइटरी रिजिमेंट और जड़ी बूटियों को भी पर्सनलाइज किया जा सकता है। तो ये बहुत एडवांस तरीका है फ्रेंड्स। तो आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंशियल प्रेशर्स, so I was just mentioning in Hindi that the vata and pitta and kapha, they have their characteristics on the pulse wave. The vata, the pulse characteristics are called as the sarpagati, it's snake like, and pitta is called as the manduka gati, or it's frog like, it's bounding. And kapha pulse looks like swan like, or hans gati is the word that was used in Sanskrit, which means swan like, which means it is sluggish. So the percentage of snake like, frog like and swan like pulse characteristics or pulse variations define the percentage of vata pitta kapha at 7 different points in 3 different levels. I mean 7 different levels in 3 different points, gathering about 21 data points on the right hand and 21 data points on the left hand. So you end up with each data point corresponds to each organ, and you end up with diagnosis of vata pitta kapha of all of the 42 organs. This is how you do the diagnosis. And the ancient science has really beautifully explained how vata, the pitta and the kapha
translate into, or influence the various physiological mechanisms in the body, the immune mechanism, the biochemical mechanisms in the body, or biochemical pathways in the body. And everything in the body is like under the influence of these three agents called the vata, pitta, and the kapha. And once you diagnose, you will be able to essentially, once you diagnose the VPK proportions in the body, you'll be able to uh, use a certain syntax which is already mentioned in books called Dravya Guna, where different foods, uh, different herbal supplements are characterized based on their VPK or Vata Pitta Kapha proportions in the form of Rasa, Virya, Vipaka, Guna, and Prabhava. It's a very advanced science, friends. That's all I can say, because this live session is not to fully educate you guys on Ayurveda, but definitely to give a fine understanding of the a very fine understanding of these very very important concepts that are actually lost today. People are actually practicing herbal allopathy in the form of and think that they're practicing Ayurveda. लोग हर्बल एलोपैथी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद नहीं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं, और ये हो रहा है क्योंकि आज जो एलोपैथी में जो हम कर रहे हैं वही मिस्टेक हम आयुर्वेद में भी कर रहे हैं। सिम्टम बेस्ड थेरेपी कर रहे हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, आयुर्वेद वैद्य के पास जाता है कि वो उसकी यूटीआई है, मन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर उसको चंद्र प्रभावटी लिखते हैं। अगर किसी का हृदय रोग होता है, हार्ट डिजीज होता है, तो उसको अर्जुन का पाउडर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको वात पित्त कफ को नापना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी के सर्व अवयव में, मतलब सारे 42 ऑर्गन्स में वात पित्त कफ का प्रमाण किस लेवल में है। अगर वो ये पता नहीं करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर वात हार्ट डिसीज किसी को आया है, हार्ट डिसीज अगर वात के वजह से आता है, तो अर्जुन का कषाय यूज करना है। इफ समवन सफर्स फ्रॉम ए हार्ट डिसीज विथ इज वाता विशिएटेड, देन यू गिव ए extra herbal, I mean water extract of Arjuna. If someone suffers from the pitta mediated heart disease, अगर पित्त के वजह से हार्ट डिसीज, हृदय रोग होता है, हार्ट डिजीज होता है, तो यही अर्जुन को आसव या घृत के रूप में देना चाहिए। The same Arjuna is given in the form of asava or a घृत, which are ethanol, low concentrated ethanol or ghee, oil preparations of Arjuna are given. So you see that this syntax is based on the proportions of vata, pitta and kapha in the body. So ये आप देख रहे हैं, आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिसीज को आप वात पित्त कफ के बेसिस पर नापना चाहिए, और वात पित्त कफ का डायग्नोसिस किए बिना आप नहीं ये डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी कहा है, वात की वजह से हृदय रोग होता है तो अर्जुन का कषाय देना चाहिए, अगर पित्त की वजह से होता है तो अर्जुन का घृत या आसव देना चाहिए, कफ की वजह से होता है तो अर्जुन का अरिष्ट देना चाहिए। ऐसे 16 डिफरेंट तरीके के आयुर्वेद में फॉर्मुलेशंस के हैं। आयुर्वेद में मतलब हर जड़ी बूटियों का 16 डिफरेंट तरीकों में से तरीके होते हैं उसको फॉर्मुलेट करने के। तो इसीलिए यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट ये है कि आपका वात पित्त कफ का नाप सही होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, 20 साल 21 साल पहले ऑलरेडी वात पित्त कफ का सबसे पहले दुनिया में हम वात और पित्त और कफ को मॉडल किए हैं। अगर मानिए आपके सामने एक ग्लास है, आज तो है लेकिन ग्लास बनने से पहले ग्लास था नहीं ना, तो ग्लास को कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहिए, तो उसका आप मॉडल बनाएंगे, है कि नहीं। तो ग्लास का मॉडल बिना, मतलब ग्लास मतलब पानी पीने का ग्लास हो या कप हो, अगर उसका मॉडल नहीं है आपके पास तो आप बनाएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे। इसीलिए एलोपैथी में ये मूल रिसर्च सिद्धांत है कि आप उसका मॉडल बनाइए, उसके बाद उसका नाप लीजिए। ऐसा हमें एलोपैथी में सिखाया जाता है। तो मैं कार्डियक सर्जन हूं, तो ये समझना बहुत आसान था मुझे। तो हमने क्या किया, वात पित्त कफ को एनिमल में मॉडल किया है। क्योंकि अभी आज क्या हो रहा है, आयुष मिनिस्ट्री हो या आयुष के बहुत सारे एडवाइजर्स ये कहते हैं, या प्रोपेगेंडिस्ट ये कहते हैं कि देखिए एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं चाहिए, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होता नहीं है, सही नहीं होता है। तो लेकिन देखिए वात पित्त कफ अगर बिना जाने
एलोपैथी के माध्यम में बिना जाने आप अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो वात पित्त कफ का नाप होना चाहिए। और एनिमल मॉडल मतलब ह्यूमन में तो मॉडल बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि वात का ह्यूमन मॉडल बना इम्पॉसिबल है और नॉट राइट है, नॉट एथिकल। तो इसीलिए हमने इंटरनेशनल एथिक्स कमेटी में जाकर ये एनिमल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने इजाज़त मांगा है। और सबसे पहले दुनिया में वात पित्त कफ का एनिमल मॉडल बनाए हैं और उसके जरिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जाने हैं कि वात के वजह से, पित्त के वजह से और कफ के वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अलग होता है। ये सबसे पहले एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश किया है दुनिया में। The what I'm trying to say is, we're see, if you have a glass in front of you with which you want to drink water, right? If before the glass was invented, you didn't have a glass, isn't it? But if you want to manufacture a glass or some container in which you want to drink water, you need to model that, isn't it? So this uh, development of model is actually mastered in allopathy. And before you essentially talk about any unknown concept in the human body or in the human physiology, you're asked to create a model. So Ayurveda, allopathic research methods warrant you to create a model in animals, essentially, because if you can't create a human model, isn't it? So we created animal models of vata, pitta and kapha, and we came up with amazing data. What I can for sure say is that the vata, the pitta and the kapha, they differently act on the body and leading to different effects on the body. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वात पित्त कफ इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने किया है एनिमल्स में 15 मतलब 3 ग्रुप के एनिमल्स को 3 अलग अलग डाइट हमने दिया है। और एक डाइट में था वात बढ़ाने वाले वस्तुएं, और दूसरे डाइट में पित्त बढ़ाने वाले, तीसरे में कफ को बढ़ाने वाले वस्तुएं थे, मतलब फूड थे जो पहले ही स्लाइड में मैंने बताया कि ऐसे फूड्स को द्रव्य गुण में ये पूरा कहा गया है जिसमें किसका प्रभाव कितना वात पे होता है, पित्त पे और कफ पे होता है, ये बताया गया है। उसको हमने साक्षी मानकर हमने वात पित्त कफ का डाइट क्रिएट किया है। और उस डाइट को फीड करने के बाद एनिमल्स में हमने ये देखा है कि उनका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बदल जाता है। जैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मतलब है, क्योंकि देखिए हम बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो देख कैसे रहे हैं कि ये लैपटॉप या स्क्रीन के ऊपर जो लाइट है आपके आंखों के अंदर रेटिना करके एक रिसेप्टर है, उसमें ना ये जो लाइट का स्टिमुलस है वो एक इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है। तो इसी तरह ये जो मैं बोल रहा हूं आप सुन इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये जो शब्द है ध्वनि को इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम ध्वनि का माध्यम को इलेक्ट्रिक करंट में बदलने वाला रिसेप्टर आपके कानों में है, और वो सिग्नल ले जाता है ब्रेन में, और ब्रेन एनालाइज करके आपको सिग्नल मतलब एक रेस्पॉन्स देता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो इसमें हमने क्या देखा है, वात में, पित्त में, कफ में ये जो इलेक्ट्रिक करंट कैसे उत्पन्न होता है, ये 3 अलग अलग तरीकाएं हैं। ये हमने फर्स्ट टाइम नापा है, और जिसके जरिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वात में, यहाँ पे जो सारे नंबर्स है कंफ्यूज ना हो जाइए, कि इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये जो वात के ये जो 7 जहाँ पे लिखा है, इस 7 के मतलब है कि वात में चलत्व जो प्रॉपर्टी है जो आयुर्वेद में कहा गया है, उसको हमने साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया है कि चलत्व होने के वजह से एक ध्वनि के वजह से 7 बारी वो सिग्नल सेंड हो रहा है ये रिसेप्टर के जरिए। पित्त में 2 बार हो रहा है, कफ में 1 बार। मतलब अगर कोई आदमी कोई सिस्टम 7 गुना ज्यादा काम कर रहा है तो उसको 7 गुना ज्यादा उसको ग्लूकोज चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ एक ग्लूकोज है जिसके माध्यम से आपको एनर्जी मिलता है, और वात में इसीलिए ज्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है। इसलिए वात के वजह से आपको वात के वजह से आप जिनमें वात ज्यादा है उनको उनके अंदर एनर्जी बहुत जल्द खर्च होता है, और इसके वजह से ऐसे लोगों को वात के वजह से ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है। पित्त में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बहुत जल्द बर्न हो रहा है, बहुत जल्द गल रहा है, क्योंकि पित्त का आयुर्वेद में ये कहा गया पित्त है अग्नि।
तो अग्नि ज़्यादा होने की वजह से जल जल्दी रहा है, इसीलिए पित्त में ग्लूकोज जल्दी बर्न हो रहा है। ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ग्लूकोज भी जल्दी बर्न हो रहा है, तो ग्लूकोज डिमांड ज़्यादा है, इसलिए पित्त के वजह से आपका ग्लूकोज जल्दी बर्न होने की वजह से, गलने की वजह से बहुत ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और कफ में कम होता है ये दोनों चीज़ें, इसीलिए कफ जिनके अंदर ज़्यादा है उनके अंदर ग्लूकोज की बहुत कम ज़रूरत होता है। इसीलिए देखिए, वात पित्त कफ का दृष्टिकोण अगर नहीं है तो हम किन में ग्लूकोज ना गलने के वजह से ग्लूकोज बढ़ रहा है, और किन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा गलने की वजह से ग्लूकोज की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई ज़्यादा हो रहा है ब्लड में, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे रिजल्ट्स आज नहीं 21 साल पुराने हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में 2019 में हार्वर्ड में एक स्टडी किया गया था, जिनके अंदर 3 डिफरेंट ग्रुप के लोगों को तीन मतलब उन 3 लोग डिफरेंट ग्रुप्स में, एक को मेलंकोलिक्स कहा गया है, एक ग्रुप में मेलंकोलिक्स थे, एक ग्रुप में एस्थेनिक्स, और तीसरे ग्रुप में एथलेटिक्स थे। और उनके तीनों में, इन तीनों ग्रुप में लोगों के बीएमआई और बीएसए, मतलब BMR एंड बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट और बॉडी सरफेस एरिया, तीनों ऑलमोस्ट लगभग सेम थे। और उनको तीनों ग्रुप में लोगों को ऑलमोस्ट एक ही तरह के डाइट दिया गया था, लेकिन तीनों में अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स था। और ये हार्वर्ड का स्टडी हाल ही में पब्लिश हुआ है। और ये हार्वर्ड स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनको, एटलीस्ट अमेरिकन को ये मालूम नहीं है कि वात पित्त और कफ के बेसिस पर आपका ग्लूकोज का डिमांड तय होता है, ये उनको मालूम नहीं है। इसीलिए उन लोगों को, वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अद्भुत और बहुत आवश्यक जानकारी है, क्योंकि वात पित्त कफ का एक आ, आस्था हमने पहली बार पैदा किया है, और जिसके जरिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वात होने की वजह से या पित्त होने की वजह से आपके ग्लूकोज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसलिए ग्लूकोज की ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए कुछ लोगों में, स्पेशली वो जो एकॉर्ड स्टडी जो बताया गया है, जिसके अंदर हार्ट डिसीज और डायबिटीज साथ में हो, उनके अंदर 6.5 से कम अगर आप ग्लूकोज का वैल्यू रखेंगे, तो ऐसे लोग हार्ट डिसीज की वजह से 31% मॉर्टैलिटी हुआ है, ऐसा कहा जाता है। ये स्टडी के जरिए हमें बताया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और yeah. See, the importance of this study was the first time we created the models of Vata, Pitta, and Kapha in experimental animals by feeding the animals with respective diets that would increase Vata, Pitta, and Kapha. And these diets were, based on the information given already in the Chikitsa Sthana and the Nidhana Sthana and Dravya Guna. And what we were able to do is, when we created the models of Vata, Pitta, Kapha, I talked about it several times. You can look at my other videos where I explained in detail. Those studies are there on Sangam Talks and on the Rajiv Malhotra ji's channel, on Infinity channel. So I'll not repeat them, because you already know. Those who are hearing me in English, you guys already know. So the key point is that in Vata, there is hyperexcitability of the tissues, which means the tissues are working faster, and hence they are using up glucose faster. In Pitta, the tissues are burning glucose faster, and hence the demand for glucose is high. In Kapha, the burn rate is low, and hence the glucose is not able to burn, and hence the tissues are not able to metabolize glucose. When there is no glucose, when the metabolism of glucose is hampered, what happens? The body is starving and it's demanding more. The people feel like, having more food. They'll be very highly hungry, and that leads to the symptoms of diabetes. So the key point I'm trying to make here is that your blood glucose could rise because of the body's inability to metabolize glucose, or your body's ability to hyperexcite or lead to hypermetabolic states, leading to increased demand of glucose. And as was demonstrated in our study,
And interestingly, in 2019, the Harvard made an excellent study on three different groups of people. In one group, there were melancholics, second group had asthenics, and the third group of athletics. So they had similar BMIs and BSAs, and they fed with similar diets. And what they found was, towards the end of the study, these three different groups had three different glycemic indices. Why? Because they had different metabolic rates. So, and this is very important. Why am I bringing this Harvard study? Is because what Harvard did was they at least were able to demonstrate three different glycemic indices in the body. And then we were able to demonstrate that Vata, the Pitta, and the Kapha lead to altered glucose metabolism, and hence altered rates of glucose burn rate, and hence altered glucose dependency and demand. This is very, very important, friends. That is the reason why in Accord study, the people who had concomitant diabetes and heart disease, they ended up with, if you're trying to intensely lower glucose, such people ended up with mortality as high as 31%. And this is very high, 31 to 42, the study mentions. So that is why the knowledge of Vata, Pitta, Kapha and the proportions of Vata, Pitta, Kapha in different organs is very, very essential, friends, for us to actually diagnose any disease. And for us, we do this routinely in our hospital. We have a group of allopathic doctors, Ayurvedic doctors, and PharmD doctors. We together, deliver this integrative approach. And once we detect these VPK imbalances in individual organs, we give personalized diet, personalized yoga regimen. See, not all yoga asanas are good. Just because someone says Bastrika is good, don't go by that, because that is going to be detrimental. If you do excessive Bastrika, if you already are Pitta aggravated and do Bastrika, friends, you're going to aggravate your Pitta further. And then your Pitta, because Pitta, is burning up your glucose faster, it will demand more glucose. And if you don't match your food with the rate at which the glucose is burnt in the body, then the body actually burns your fat. And then, once it encourages the visceral fat, you end up with severe disabilities, including organ failures, as was demonstrated in several studies. तो हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि जैसे हम वात पित्त कफ का नाप लेते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जहाँ पे आयुर्वेदिक के डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर्स और फार्मडी डॉक्टर्स, हम तीनों डिफरेंट तरीके के डॉक्टर्स साथ मिलके काम करते हैं, और साथ मिलके काम करने की वजह से हमें ये हासिल हुआ है, जो हमने पहले बताया था कि बहुत सारे एंड स्टेज बीमारियों का इलाज हम करते हैं। और हम कोई गाइडलाइंस को हम वायलेट नहीं करते हैं। अगर आपका एलोपैथी डॉक्टर कहता है, एक गाइडलाइन के हिसाब से ट्रीट करता है, हम उसमें दखल अंदाज नहीं करते। हम वो ट्रीटमेंट अगर आपको फ़ायदेमंद नहीं होता है, जब एंड स्टेज आ जाता है, तभी हम ऐसे पेशेंट्स को लेते हैं, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एलोपैथी इज़ द मेन स्ट्रीम। और एंड स्टेज डिसीज में डेफिनेटली एलोपैथी का, जब कोई और फॉर्म ऑफ मेडिसिन का वहाँ पे कोई चारा नहीं है, तब डेफिनेटली पॉली साइंटिफिक आयुर्वेदा आपके लिए आगे बढ़ेगा। और हम इस माध्यम के जरिए पर्सनलाइज डाइट देते हैं, एक्सरसाइजेस, योगासनास, प्राणायामास, और पर्सनलाइज्ड फॉर्मुलेशन देते हैं, और होम रेमेडीज भी देते हैं। और लोग अक्सर सोचते हैं, देखिए हम भस्त्रिका रोज कर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर पित्त बड़ा है उनके लिए भस्त्रिका सही नहीं है। क्यों? भस्त्रिका के वजह से आपका पित्त बढ़ता है। तो पित्त शामक शीतली करना चाहिए ऐसे लोग। तो देखिए, ये योगासन 700 डिफरेंट तरीके के योगासन है। प्राणायाम तो 1800 के डिफरेंट तरीके के प्राणायाम है। इसको भी पर्सनलाइज करना है, क्योंकि अगर नहीं पर्सनलाइज करेंगे तो योग, आसन और प्राणायाम, इनके वजह से भी मतलब मुश्किलें या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये हम दावे के साथ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि और लोग सोचते हैं योग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं करते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब योगा है तो सारे एथलीट्स योगी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही योगी है। और और हमारे योगी मुनिया इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं जो एथलीट्स नहीं कर सकते हैं। हम
और प्राणायाम, अगर प्राणायाम लोग सोचते हैं ब्रीदिंग टेक्निक है, नहीं दोस्तों, ये प्राण का याम है। मतलब जर्नी ऑफ द प्राण है, मतलब प्राण अपान व्यान उदान समान है। तो 5 तरह के जो प्राण होते हैं उनका कंट्रोल ही प्राणायाम होता है, ये सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक नहीं। अगर प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक होते तो टॉम क्रूज से बढ़िया प्राणायाम करने वाला योगी मिलेगा नहीं आपके सामने। मतलब टॉम क्रूज बहुत महत्वपूर्ण एक्टर है, उनके खिलाफ ये नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सब कुछ आपके प्राणायाम हो, योगासन हो, सब कुछ आपको पर्सनलाइज करना है। पर्सनलाइज किए बिना आपको कोई हेल्प नहीं होगा। और ये पर्सनलाइज करने की वजह से एंड स्टेज डिसीजेस हम बहुत सारे हम सॉल्व कर पाए हैं। बहुत सारे जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, एलोपैथी में क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, पायरेक्सिया अननोन ऑरिजिन जैसे डिसीजेस, बहुत सारे महामारियों को एंड स्टेज में हम इलाज कर पाए हैं। और बहुत पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिम्टम फ्री सर्वाइवल हमने दिखाए हैं। और हमारे लिए डिबेट ऑन ग्लूकोज या शुगर लेवल्स इज क्लोज्ड फ्रेंड्स। रक्त के शक्कर मतलब शुगर की बीमारी जो कहते हैं, हमने इसका मसला ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं, और पहले भी मैंने कहा कि ये सारे एसोसिएशन सही है। अमेरिकन एंडोक्रिनोलॉजी सिर्फ जिनमें कफ ज़्यादा है वो उन लोगों में सही है, और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन उन लोगों में सही है जिनके अंदर पित्त और कफ ज़्यादा है। अमेरिकन जीरियाट्रिक एसोसिएशन इन उनके अंदर लागू होता है जिनके अंदर पित्त और वात का प्रधानता हो, और अमेरिकन का फिजिशियंस एसोसिएशन जिनके अंदर वात ज़्यादा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, वात पित्त कफ का जानकारी नहीं है तो हम गलतियां कर सकते हैं, और इसीलिए वात पित्त कफ कफ का दृष्टिकोण बहुत बहुत जरूरी है। सो for us at Polyscientific Ayurvedic Institution, the debate on sugar is closed. Several diseases, as I said, were addressed in end stage. And as I said, if we work in an integrative fashion by incorporating scientific aspects of Ayurveda into your clinical practice, you will be able to really help people. And for us, the debate on diabetes is closed because, friends, we know that the American College of Physicians standards need to be applied in patients who have Vata dominance, and patients who have Pitta Vata dominance, you need to apply American Geriatric Association's standards, and in whom Pitta Kapha are predominant, you need to apply the American Diabetic Association standards, and those people who are Kapha dominant need to be essentially treated based on the American Endocrinologists Association standards, friends. So this is what we wanted to share for today. As I said, many diseases were cured in our institution. More than 85% of patients end up with improved clinical outcomes in the form of improved quality of life and improved symptom-free survival. And at least 63% of those patients who were able to follow our integrative personalized approach in the form of personalized dietary regimen, if people were able to follow the personalized dietary regimen which was prescribed, the personalized herbal supplement regimen which was prescribed, the personalized yogasana regimen, the personalized exercise, breathing exercise, and home remedies regimen, they have been they have attained 63% of them are free from drugs, friends. And we're talking about end stage patients, we're not talking just about anyone. So this is what we wanted to present, friends. With this presentation, I want to share that we're going to talk more about several diseases. We're going to talk about more about diabetes further in the next couple of sessions. We're going to talk about how the advanced knowledge on diabetes is already explained in detail in Ayurveda in the form of the pramehas, the madhumehas. It's going to be a very, 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 very interesting. So definitely do connect to us. We'll post information and then we'll take you with this journey of getting you aware of advanced Ayurveda in the form of polyscientific Ayurveda, friends. So reach out to us on 1-800-569-8989 or care@sgprs.com. So दोस्तों, हम और आगे बहुत सारे
एटलीस्ट कम से कम 2-3 हम एपिसोड करेंगे इस डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये डायबिटीज़ का मसला हमारे इंस्टीट्यूशन में ख़त्म हुआ है, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज़ कैपिटल है आज, और अम, लेकिन हम इसको रिवर्स करने का हम दावा करते हैं और कर सकते हैं, और इसके लिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आगे जाके मधुमेह क्या है, प्रमेह क्या है, इसके बारे में और जानकारी देंगे। इसलिए आगे हमारे पास लाइव में बने रहिएगा। और सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ so if you want to take dental treatment, there are a couple of points. Tooth extraction, are there any suggested doctors? Because while your treatment sugar levels show high. Okay. So friends, oh yeah, we are no, I'll come back to Mr. Kiran Kumar. So, yeah, see, we have to go by the guidelines, Mr. Kiran Kumar. We're not here to violate any of the guidelines. So, your dental doctor will be will be the ones who's going to call shots. So you have to follow his guidelines, friend. So we are not here to redefine the guidelines. We are here to actually follow the guidelines, and we need to follow the guidelines as given by your respective specialist. डॉक्टर जी, आप नाड़ी से डायबिटीज़ है या नहीं आप डायग्नोस कर सकते हैं, मगर डॉक्टर्स ने शुगर लेवल्स टेस्ट करके कंट्रोल करने के लिए डोसेस इंक्रीज भी कर देते हैं। हम किसको मानना है डॉक्टर? इट इज़ कन्फ्यूजिंग। हाँ बिल्कुल, पीडीएस जो भी हैं, गुड इवनिंग जी। बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। आज कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम इतना कह सकते हैं कि डायबिटीज का नंबर बढ़ ही रहा है ना। जितने भी आप तरीका आजमा लें, यही डेटा तो यही कह रहा है कि जितने भी दवाइयाँ ले, आपका डायबिटीज तो कम हो ही नहीं रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीडीएस स्टडी है, बहुत सारे यूके पीडीएस और बहुत सारे स्टडीज किए हैं जिनके जरिए हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल करने, मतलब ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के बावजूद भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही रहे हैं पेशेंट्स में। तो ये बड़ा मसला है। देखिए, इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि ये मधुमेह के बारे में और प्रमेह के बारे में जाने, और जो साइंस, आयुर्वेद का साइंस हमारे सिविलाइजेशन को आज तक जिंदा रखा है, उसके जरिए हम उस विज्ञान को पाए और उसको आजमा के हम आगे मतलब हेल्दी रहे, ये हमारा सोच है। उसके जरिए बहुत हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाए हैं। तो डेफिनेटली आप एक बार हमें कांटेक्ट करके देखिए, और हम एक ओरिएंटेशन सेशन करेंगे जिसके जरिए आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगा हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, और उसके जरिए आप हमारे पहले जो ट्रीट हुए हैं इन पेशेंट्स को मिल के या बात करके आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का साइंटिफिक सेशन है, और हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आगे आएंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, दिस वाज आवर फर्स्ट लाइव इन इंग्लिश एंड हिंदी, reaching out the Hindi belt, and so but we're going to come up with several interesting sessions in the future, so stay tuned friends. So I'll take leave from you today, and see you all again the next time. Thank you very much.